Calculation of return on investment and return on equity. रिटर्न ऑन इक्विटी, ये टॉपिक करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? जनरली वी से दिस मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस. जब हमने कहा कि बिजनेसमैन ने इतनी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई, तो व्हाट डज इट इंक्लूड? That investment includes investment done by the entrepreneur in the form of equity as well as in the form of loan. Now what is this equity? Equity is the savings invested by the businessman in his business, and loan can be any kind of loan a businessman has taken ताकि वो अपने business में invest कर सके. अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि जी बिजनेसमैन ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी और 4 लाख का लोन लिया, लेट्स से कि आपको कहा गया कि बिजनेसमैन ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और 4 लाख का लोन लिया, तो आपने इसका मतलब ये नहीं निकालना कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मतलब इतना इक्विटी इन्वेस्ट कर दिया. नहीं, 1 लाख इन्वेस्टमेंट मीन्स कि 1 लाख इज टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय यू एंड आउट ऑफ विच 4 लाख इज द लोन अमाउंट. So whatever 6 lakh is left, this 6 lakh is the equity. The 6 lakhs is the equity invested by the entrepreneur. Got it? So investment includes both equity and loan. Now I'll give you a performer of a table that will help you in solving any type of question related to ROI and ROE. And keep one thing in your mind, you can't learn that table. आप उस टेबल को लर्न नहीं कर सकते, आप उसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो. Wherever you have any doubt related to that table, just write down in the comment section. I will explain that doubt to you there. This topic, I generally don't say kids to write down their doubts in the comment section, but here I am telling you all that it's a practical topic. You can either understand it logically, but you can't learn it. So let's understand this table. This table is divided into 2 parts. One is, first of all, we'll make investment statement. In this investment statement, first part is equity. क्वेश्चन में इक्विटी भी लिखा हो सकता है, सेविंग्स भी लिखा हो सकता है. इन क्वेश्चन दे वुड हैव रिटन द इक्विटी और या फिर उन्होंने सेविंग्स भी सकता है. वहाँ पर एक ही बात है, इक्विटी एंड सेविंग्स. और लोन भी लिखा हो सकता है, डेट भी लिखा हो सकता है, डिबेंचर्स भी लिखा हो सकता है. डिबेंचर इज अनदर फॉर्म ऑफ लोन. फाइन. सो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट टोटल इन्वेस्टमेंट. This account is closed here. Why we created it? To show that this much of the money is invested by by the entrepreneur and this much money he has taken as a loan. So this is the total amount of money invested by the entrepreneur. Now next part is income statement. For this income statement, first thing we need is sales revenue. First thing we need is sales revenue. अब ये सेल्स रेवेन्यू आपको मंथली दिया है. अगर मंथली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए एंड राइट डाउन हियर. अगर मंथली होगा क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर एनुअली होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, नथिंग इज स्पेसिफाइड वेदर इट्स मंथली और इट्स एनुअली, देन दैट इज एनुअली ओनली. ओके, बट इफ इट इज मंथली इट विल बी मेंशन्ड देयर दैट इट्स मंथली. नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, if it is given monthly you have to convert it into annually. Why I am saying that we have to convert it into annually? Why can't we calculate it on monthly basis? You can calculate it on monthly basis also, but there are some expenses which we calculate on annual basis.
So when we take all other expenses on annual basis, then it makes our calculation little easy. While moving ahead with the question, I will tell you which are because of which expenses we calculated on annual basis. But अगर आपके question में लिखा है that calculated on monthly basis, then you have to calculate it on monthly basis only. If it is specified in the question that you have to calculate on monthly basis और आपने annual calculate कर दिया, then no marks will be given to you for that. Okay, so sales revenue minus cost of goods sold. For this also you will multiply it with 12. इसमें से माइनस करोगे, माइनस करके क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट. इसे ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं और कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन. अब जितना ये प्रॉफिट आया है इसमें से माइनस करिए, लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, less fixed expenses and interest on loan, and last is depreciation and amortization. क्या होते हैं ये दोनों अभी बताऊंगी आपको. depreciation and amortization. First of all let's take the fixed expenses. रूल हमारा सेम है. अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस के साथ मंथली लिखा है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है. अगर नहीं लिखा है तो आप उसे एनुअल ही एज्यूम करोगे. ठीक है. सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए होते हैं हमें मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन में. ईपी के पेपर में ना वो ज़्यादा एग्जामिनर्स एक्सपेरिमेंट करता नहीं है बहुत तरह के एक्सपेंसेस देके. देयर आर लिमिटेड एक्सपेंसेस विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. रेंट, ऑल्दो फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं. रेंट, देन सैलरी, देन पावर, यूटिलिटी. अगर ये रूल हमारा सेम है बेटा कि अगर ये मंथली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करते जाओ और मल्टीप्लाई बाय 12 करके इसे बाहर लिखते जाओ. ठीक है. अब ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनको मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूँगी. ये लो. ठीक. ये फिक्स एक्सपेंसेस का काम खत्म हो गया यहाँ पे. इट इज़ डन नाउ. अब किसकी बारी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की. इंटरेस्ट ऑन लोन में जो इंटरेस्ट रेट है इट विल बी गिवन विद योर क्वेश्चन इटसेल्फ. जहाँ पे लोन दिया है ना, लोन के साथ ही लिखा होगा लोन इज टेकन एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. और अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन पर एनम होता है. अब अगर मैं मंथली बेसिस पे करूँगी ना तो मुझे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी डिवाइड बाय 12 करके उसे मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू अवॉइड दिस फर्दर कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई आवर डाटा विद 12 और हम एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करके दे देते हैं उसे. सो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो लोन दिया है मुझे उसी के साथ इंटरेस्ट रेट दिया होगा, वो इंटरेस्ट रेट लगाओ, डिवाइड बाय 12 करो और वो यहाँ लिख दो, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया. ये टॉपिक ये भी हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इसमें हमने कुछ नहीं करना क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन पर एनम ही होता है, एनुअली किया होता है. डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं. दो तरह के एसेट होते हैं, एक होते हैं आपके टेंजिबल और एक होते हैं इंटेंजिबल. मशीनरी वगैरह आपका टेंजिबल है, पेटेंट कॉपीराइट आपका इंटेंजिबल है. डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन एंड डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन इज चार्ज्ड ऑन is the wear and tear and the reduction of value of intangible assets. Okay, ये आपको 99.99% एनुअल ही दिया होता है, एनुअल ही दिया होता है. अगर ये मंथली होगा बेटा तो इसके साथ मंथली लिखा होगा. नेक्स्ट हो सकता है सारे क्वेश्चन में मंथली लिखा और डेप्रीसिएशन के साथ मंथली नहीं लिखा ना मंथली, तो इसका मतलब वो एनुअल है. मैं फिर कह रही हूँ, डेप्रिसिएशन आपको मंथली नहीं दिया होगा, एनुअली ही दिया होता है, अनलेस और अनटिल कि एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया जी ये भी मंथली है. ओके, तो वो डेप्रिसिएशन आप यहाँ ले लोगे, वो भी माइनस कर दोगे और फाइनली माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट कौन सा आया, नेट प्रॉफिट जिसमें से मैंने अभी टैक्स नहीं माइनस करा है ना, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये वाला अमाउंट ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब इसमें से टैक्स माइनस कर दूंगी. बेटा टैक्स रेट भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा. सो इट इज जो भी आपका ये नेट प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट के साथ. टैक्स डिवाइडेड बाय 100. तो जैसे ही आपने करा टैक्स डिवाइडेड बाय 100, ये लो ये माइनस कर दिया.
अब मेरे पास जो प्रॉफिट आया ना, ये मेरी चीज़ है, ये काम की चीज़ है। ये क्या है बेटा? ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका दूसरा नाम है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझ गए? अब इसी के साथ हमने आगे कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला बोला मैंने आपको? इट इज नेट प्रॉफिट विच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सीधी सी बात है बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कर दो, और रिटर्न ऑन इक्विटी है तो, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी इंटू 100। ये नेट प्रॉफिट वही है जो हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही चीज़ है। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स ध्यान में रखना इसके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। पहला टिप वही है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो आपकी इक्विटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब इसमें इक्विटी और लोन दोनों इंक्लूडेड हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आपको लोन दिया है तो इन्वेस्टमेंट में से लोन माइनस करके, लोन माइनस करके इक्विटी पता कर लो। अगर इन्वेस्टमेंट दिया है और इक्विटी दिया है तो ये माइनस करके लोन पता कर लो, लोन का अमाउंट पता कर लो। ठीक है? सेकंड टिप है, अगर कोई क्वेश्चन मंथली बेसिस पर होगा then it will be mentioned that it's on monthly basis. If nothing is mentioned then it is on annual basis. कुछ नहीं लिखा उसने तो annual है, monthly होगा तो लिखा होगा। Clear? So all the whatever question you will calculate, your first preference will be to calculate it on annual basis. I hope it is clear to each one of you. चलिए अब इसका प्रैक्टिस भी करना हमें, तो जो नेक्स्ट वीडियो है इसका, उसमें हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जॉइन मी देयर। थैंक यू।